ઓમ નમઃ શિવાય. આવો આજની કથા શુભ પ્રારંભ કરીએ તે પહેલાં પોથીજીનું પૂજન અને બાપુના આશીર્વાદ લેવા માટે અગાઉ જે ભાઈઓના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો તેઓ પરિવાર સાથે અત્યારે ધર્મમંચ ઉપર પધારે તેવી નમ્ર વિનંતી છે. કથાની શરૂઆતની અંદર જે પણ ભક્તજનોના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હતો તેઓ અત્રે પોથીજીનું પૂજન કરવા માટે વધારે તેવી નમ્ર વિનંતી છે. આયોજક પરિવારને વિનંતી કરવામાં છે આપ પોથીજીનું પૂજન કરવા માટે વધારો તેવી નમ્ર વિનંતી છે. પોથી પૂજન માટે વિનંતી કરીશ શ્રી નરેન્દ્રસિંહ વી ઝાલા, નરેન્દ્રભાઈ સોની પરિવાર અને જગદીશભાઈ કટુવાલા પરિવારને વિનંતી છે કે આપ ઝડપથી ધર્મમંચ ઉપર પોથીજીનું પૂજન અને બાપુના આશીર્વાદ લેવા માટે પધારો તેવી નમ્ર વિનંતી છે. આપણી કથાની અંદર સાંજે 5 વાગે નર્મદેશ્વર મહાદેવ મહિલા સત્સંગ મંડળ દ્વારા ઈશ્વર વિવાહનો કાર્યક્રમ અહીં રાખવામાં આવેલો છે. તો તમામ ભક્તજનો સાંજે 5 વાગે કથા મંડપમાં અવશ્ય હાજરી આપે તેવી નર્મદેશ્વર મહિલા મંડળ દ્વારા આપને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. સાંજે 5 વાગે ઈશ્વર વિવાહનો કાર્યક્રમ આ કથા મંડપમાં જ રાખવામાં આવેલો છે, જેના નર્મદેશ્વર મહાદેવ મહિલા મંડળ દ્વારા આ રાખવામાં આવેલો છે. તો તમામ ભક્તજનો અવશ્ય હાજરી આપે તેવી અત્રેથી આપને અપીલ કરવામાં આવે છે. આપણી કથાના આસ્થા ચેનલમાં જે લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે તેમના મુખ્ય દાતા શ્રી હરિદાસભાઈ જીવણદાસલાલ લાલ પરિવાર અને તેમના પુત્ર શ્રી અશોકલાલ તથા જીતુલાલ તરફથી તમામ શ્રોતાઓને જય જલારામ પાઠવવામાં આવે છે. સાથે સાથે દૈનિક ભોજનના દાતા શ્રી પ્રભુભા વિરંભા માણેક તથા શ્રી લક્ષ્મીદાસ દામજીભાઈ ભાનુશાળી તરફથી આ 9 દિવસની મહાપ્રસાદીનું આયોજન થયેલું છે. આ તદુપરાંત બીજા દાતાઓ પણ આપણી વચ્ચે નામ આવેલા છે, જેની અંદર મંડપના દાતા છે શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ મેરુભા જાડેજા હકુભા, શ્રી નરેન્દ્રસિંહ વી ઝાલા, નંદલાલ ખાટુવાળા, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ આર સોની, શ્રી મેરામણભાઈ હરદાસભાઈ પરમાર, દાતાશ્રી જયંતિલાલ નાથાલાલ ફલિયા, શ્રીમતી મણિબેન પરસોત્તમભાઈ કંટારિયા તથા શ્રી ગંગા સ્વરૂપ હીરાબેન હમીરભાઈ ગઢવી, હસ્તે નિકુમભાઈ હમીરભાઈ ગઢવી આપશ્રી પણ દાતાશ્રીઓ છે. આ તમામ દાતાશ્રીઓનો આયોજક પરિવાર તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. તેમાં સર્વશ્રી દેવસીભાઈ ચેતરિયા, નરસિંહભાઈ પટેલ, અનિલભાઈ અનરકટ, યોગેશભાઈ વાયા, નયનભાઈ વ્યાસ, કશ્યપભાઈ મહેતા અને શ્રી રણમલભાઈ નંદાણીયા આ તમામ દાતાઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે. પોથીજીનું પૂજન અને બાપુના આશીર્વાદ મેળવ્યા બાદ આવો આજની કથાનો શુભ પ્રારંભ કરીએ. તે પહેલાં કહેવાય છે કે ઝાંખી, દર્શન અને ઉત્સવ એટલે ઈશ્વરના સામીપ્યનો અહેસાસ. અમુક મિનિટો માટે થાય તે ઝાંખી છે, નક્કી કરેલા સમય મર્યાદામાં થાય તે દર્શન અને નક્કી કરેલા દિવસોએ ઉજવવામાં આવે તે ઉત્સવ. ઉત્સવમાં પરમાત્માએ કરેલી તેની લીલાઓનું તેમના જ ભક્તો દ્વારા કરવામાં આવતું અનુકરણ કે પુનરાવર્તન. કારણ કે અનુભવાય તે ઉત્સવ છે, દેખાય તે દર્શન છે અને જીવને જગાડે તે ઝાંખી છે. જીવનમાં
सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ भगवान महादेव जी की कथा में आप सबका स्वागत है। नर्मदेश्वर महादेव सत्संग मंडल आयोजित इस शिव महापुण्य कथा आयोजन करता श्री देवशिव भाई छेत्रिया, श्री नरसिंह भाई पटेल, श्री अनिल भाई अननकट, श्री योगेश भाई वाया तथा रणमल भाई नंदाणिया, श्री नयन भाई व्यास और श्री कश्यप भाई मेहता, आप सभी का साथ और सहकार के द्वारा, सहयोग के द्वारा भगवान महादेव जी की कथा का आयोजन हुआ है। आस्था चैनल में जो कथा लाइव प्रसारण हो रही है उसके दाता श्री हैं श्री हरिदास जीवनदास लाल, लाल परिवार, पूर्व मंत्री श्री गुजरात राज्य, श्री अशोक लाल तथा जीतू लाल ना जय जलाराम साथे आस्था चैनल ની અંદર ये कथा ये अजमानों द्वारा लाइव हो रही है। हमारे कथा निमित्त भगवान महादेव जी के प्रसाद ने महाप्रसाद की व्यवस्था जो कथा सुनते हैं भक्तों के लिए की है। ये मेरे दैनिक भोजन दाताओं के नाम हैं श्री पबूभा वीरम्भा माणिक धारासभ्य श्री, श्री लक्ष्मीदास दामजी भाई भानुशाली जामनगर। इस महानुभावों के द्वारा, इस दाताओं के द्वारा यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। अन्य अन्य छोटे मोटे सभी दाताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। दाता देव से भी दुर्लभ हैं, देव का कार्य दाता से होता है, इसलिए सभी छोटे मोटे दाताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। सभी दाताओं का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे शिव महापुराण के व्यासपीठ के नजदीक स्टेज पर हमारे जामनगर के एक रत्न पूज्य मोरारी बापू के साथ निरंतर तबला बजाने की सेवा दे रहे हैं ऐसे पंकज भाई भट्ट के सुपुत्र श्री भगीरथ भाई आज इस शिव कथा के अंदर सितार की सेवा दे रहे हैं। और ये भगीरथ पंकज भाई पटेल जो यहाँ सितार बजा रहे हैं,
ये भारत देश में सितार वाद्य में प्रथम है। ये आप जामनगर के गौरव हैं। ये जामनगर के एक रत्न है। आपके गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए पुनः पुनः हम भगीरथ भाई को स्वागत करते हैं, हम बधाई देते हैं। धन्य हो माता पिता है जिसका पुत्र संगीतकार हो, समाज का सेवक हो, एक अच्छा डॉक्टर हो, एक अच्छा इंजीनियर हो। धन्य माता पिता वो है उसके संतान समाज कल्याण के लिए सदुपयोगी हो। ऐसे हमारे पंकज भाई भट्ट को भी हम हृदय से स्वागत करते हैं और व्यासपीठ खूब खूब धन्यता देते हैं। ये माता पिता के पुरुषार्थ और संस्कार का फल है। संगीत विद्या सभी को प्राप्त नहीं होती। परमात्मा भगवान महादेव जिस पर कृपा करते हैं उसको संगीत की विद्या प्राप्त होती है। आप जामनगर वासी बहुत भाग्यवान है कि पूरे भारत देश में सितार वाद्य में जो प्रथम है, ऐसे मेरे भगीरथ भाई इस मंच पर विराजमान है। पुनः पुनः उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करें इससे पहले हम सब साथ में मिलकर प्रयागराज को याद करें। जिस तीर्थ को याद करते हैं यह तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। तो हम सब साथ में मिलकर प्रयागराज को याद करें, थोड़ा सा गाने का प्रयास करें। ब्रह्मलोक के मार्ग समान प्रयाग तीर्थ में सुतजी महाराज भगवान महादेव की कथा का गान कर रहे हैं। उन्हीं के सामने 88,000 महात्मा भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कथा का गान कर रहे हैं। नारद जी भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो मानव समग्र तीर्थों का स्वरूप है। जो मानव भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, हे नारद, ये भगवान महादेव का ही स्वरूप है। हे नारद, जो मानव भगवान महादेव की कथा सुनते हैं यह मानव का दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। सुत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, मैं आप सभी को भगवान शिव और सती के जीवन चरित्र की कथा का गान करूं। भगवान व्यास ने जो कहा वो मैं आपको सत्य सत्य कहूं। विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, मानव के सुख के लिए मां भवानी, मां जगदम्बा आद्य शक्ति प्रदेश नगर दक्ष के आंगन में पुत्री रूप में प्रकट हुई। महात्माओं ने नामकरण विधि की, नाम सती रखा। प्रदेश मालिक दक्ष की पुत्री है सती। सती का जीवन चरित्र अति उज्जवल है, अति पावन।
समग्र जगत को एक मार्ग दिखाने वाला इस सती का जीवन है। प्रदेश मालिक दक्ष की पुत्री ए सती बाल्यावस्था को पूर्ण करके किशोर अवस्था में प्रवेश किया और किशोर अवस्था पूर्ण करके युवा अवस्था में प्रवेश किया। प्रदेश मालिक दक्ष की पुत्री सती का जीवन चरित्र अति उज्जवल है, अति पावन। भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर सती के जीवन चरित्र की कथा कही है और भगवान व्यास बोले शिव महापुराण के एक एक श्लोक इस समग्र लोक को पावन करते हैं, अंतकरण को अति पावन करते हैं। इसलिए भाव से हृदय से आप सुनिए। तीर्थ्यम विहारे रुचिरे कौमार्य भक्त वत्सा जहाँ अवस्था भगवान व्यास ने बहुत सुंदर कहा है। सती का दर्शन है कौमार्य भक्त वत्सला। ये सती बाल्य अवस्था से परमात्मा की भक्त थी, कौमार्य भक्त वत्सला। और नीति सूत्रों में कहा है इस धरा पर 3 प्रकार के बालक जन्म लेते हैं। एक तो ऐसे बालक जन्म लेते हैं जो बालक पूर्व जन्म के संस्कार लेकर ही आते हैं, उसको संस्कार देना नहीं पड़ता। एक पूर्व जन्म के पूर्ण कर्म और पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर ही धरा पर आते हैं। ये तो साक्षात भवानी है, मां जगदम्बा है, उसकी महिमा तो हम कैसे गाए। लेकिन सूत्रों की बात है तो करें। ऐसे बालक इस धरा पर आते हैं, उसको संस्कार देना नहीं पड़ता, वो संस्कार लेकर ही आते हैं। और उस दूसरे क्रम का ऐसे ही बालक होते हैं, इस बालक को संस्कार देना पड़ता है, तभी संस्कार आते हैं। और तीसरे नंबर के बालक ऐसे जन्म लेते हैं, उसको आप संस्कार दो तो भी संस्कार नहीं आते। कोई कोई बालक ऐसे अवतरित होते हैं जो संस्कार लेकर ही आते हैं। दूसरे क्रम के बालकों को संस्कार देना पड़ता है, तभी संस्कार आते हैं। और तीसरे प्रकार के बालक ऐसे होते हैं, कितना ही प्रयास करो लेकिन उसमें संस्कार आता ही नहीं। तो भगवान व्यास ने सती के लिए कहा कौमार्य भक्त वत्सला। ये बाल्यावस्था से परमात्मा भगवान महादेव की परम भक्त थे। विशेष सती का गुण है स्वेच्छाधृत नराकृति। एक सामान्य नर जैसी आकृति लेकर सती इस धरा पर आई। सती का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, सती प्रकट हुई। लेकिन ये शब्द रखा है भगवान व्यास ने, स्वेच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार विहार करती है।